हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विलास एकेडमी। हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि हमने पेपर कैसे लिखना है, कैसे पेपर में मार्क्स लेने हैं, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस ये सारी चीज़ें देखी हैं कि आप कैसे मार्क्स लेंगे, कैसे स्कोर करेंगे, कैसे पेपर लिखेंगे। अगर आपने ये वो देखा नहीं है तो प्लीज़ वॉच इट। Now, the very important chapter of yours is reproduction in lower and higher plants. अब बच्चों, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन कैन बी डन सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। Very first thing, what is reproduction? So reproduction is nothing but to produce same kind of offspring again. That is the procedure of reproduction. Now it can be done asexually and sexually. So in asexual reproduction there will be a single parent involved. So in asexual reproduction, single parent or else single gamete is responsible for asexual reproduction. Single parent is involved in this kind of reproduction. Now, what is speciality of asexual reproduction is कि जब asexual reproduction कोई भी organism करता है और एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है तो प्रोजेनी बिल्कुल एकदम क्लोन होती है, एकदम कॉपी होती है अपने पेरेंट की. सो हियर इट गिव राइज टू क्लोन्स. Now, when we talk about sexual reproduction, here the two parents are involved, two gametes are involved, and what happens when they reproduce? The exact copy is produced. क्या आप आपके पापा और आपकी मम्मी की exact copy हो? No, right? So the variations are there in the sexual reproduction. Sexual reproduction is a kind of reproduction where two, that is male and female gametes are involved. और यहाँ आपको एग्जैक्ट कॉपीज नहीं मिलेगी, आप क्लोन नहीं बन सकते अपने पेरेंट्स के. सो देयर आर वेरिएशंस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? सो टू मेंटेन द नंबर ऑफ द प्रोजेनीज और ऑफ अ स्पीशीज is continuation of the species. For that purpose reproduction is very crucial. Now we will talk about what are the kind of sexual reproduction. So in this picture you can see that asexual reproduction occur by fission, fragmentation, budding, vegetative propagation, spore formation and regeneration. So first of all, when we talk about regeneration, back side pen ka back side. Okay, sorry. Okay. When we talk about regeneration, we must remember that the cells of the plants as well as some animals, they have a capacity that is called as totipotency. So what do you mean by totipotency? So when we talk about totipotency क्या है? तो totipotency is a ability of the cell टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. जहाँ एक सेल के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी रहती है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में अपने आप को डेवलप कर सके, दैट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी. सो इट इज एन एबिलिटी ऑफ सेल टू divide or
differentiate into a whole new organism. Now, when we talk about fission, fission occurs in amoeba. आप सभी को amoeba पता है. Amoeba is a unicellular organism of irregular shape. So this is amoeba. Now, in fission, amoeba divide itself into the two equal halves. अब जब डॉटर अमीबा बनेगी तो डॉटर अमीबा में पहले होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है टू इक्वल हाफ्स में. फिर यहाँ पे एक इंसीशन बनेगा जिसके बाद ये न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगी हमारी दो डॉटर अमीबी सेल्स. नाउ this is the first example of fission. Now we will turn into fragmentation. We all have seen there is a spirogyra which looks like this. Now the spirogyra divides into equal halves and that is called as fragmentation. And this again, this division of spirogyra, they divide into adult organisms. Now, when we talk about budding, budding occurs in yeast as well as protosiphon. So how yeast look like? Yeast is a unicellular organism that looks like this, and what happens when it tries to do asexual reproduction, the bud formation occurs in the yeast and it reproduces by budding. The parent cell and the daughter yeast cells. Now, when we talk about spore formation, so spore formation, in spore formation what happens? There are two kinds of spore formation. One is endogenous and another is exogenous. So we all have seen the rhizopus, right? The fungi that occurs in the bread. तो अब rhizopus में क्या होता है बेटा? Rhizopus में ऐसे मल्टीपल स्पोर्स बनते हैं जो कि बाय द एयर स्प्रेड हो जाते हैं और राइजोपस ऐसे स्प्रेड होता है. एंडोजीनियसली इसके स्पोर फॉर्मेशन होती है. एंड इवन यू हैव सीन द पेनिसिलियम फंगी. द पेनिसिलियम फंगी हैज कोनिडिया. इसमें ये कोनिडिया वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सोजीनियसली फॉर्म होते हैं और ये भी थ्रू एयर मूव करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट there are zoospores which are motile spores. Zoospores are the spores which are motile. ये दोनों spores इनको medium लग रहा है, इनको air लग रही है, but zoospores are motile. Zoospores हमको देखने मिलते हैं Chlamydomonas में. Chlamydomonas is a type of algae where you will find the zoospores that are motile spores. Apart from this, endogenously and exogenously formed spores are there, like in Aspergillus fungi you will find, and Penicillium. In this rhizopus you will find the spores which are endogenous. Now, when we talk about, we have already talked about in the previous slides.
We have talked about totipotency. What is totipotency? Whenever an organism regenerates, its cells has the ability to divide itself. That is totipotency. Apart from that, we have seen amoeba. Amoeba do the asexual reproduction by the fission, binary fission. Why we are saying this as binary fission? Because the daughter is dividing into two. Binary means two daughter cells are made. In yeast, we see the budding, as well as in Spirogyra, we see the fragmentation. Moving ahead, we have also seen that some organisms reproduce by spore formation, that is by endogenously and exogenously. In endogenous, the spores will be formed inside, and exogenously means the spores formation occur in outside. And there are zoospores in the Chlamydomonas algae that are motile. Now, further, बेटा after spore formation हम आते हैं vegetative propagation पे. Now, when we see this term vegetative propagation, इसका मतलब होता है जब हम vegetative propagation मतलब एक नया plant बनाते हैं from the plant part. अब ये चीज़ दो तरीके से हो सकती है. एक जब plant के naturally part से हम ये चीज़ नया plant उगाएं, या फिर हम उसको artificial ही भी create कर सकते हैं. So, very first thing, हम देखते हैं कि नेचुरली हम किसी नए प्लांट को कैसे बनाएंगे. देयर आर द मेथड्स. नेचुरली आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसका टाइप हो सकता है फर्स्ट वन रूट. अगर आपको रूट से प्लांट को प्रोपेगेट करना है, रूट से नया प्लांट बनाना है, तो आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं. स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, ये रूट से नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम पर्टिकुलरली स्टेम की बात करें तो स्टेम को हम तीन तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं. दैट कैन बी राइजोम. राइजोम से अगर आप देख रहे हैं जिंजर, टर्मरिक, ऐसे दो प्लांट्स हैं जो कि आप राइजोम, स्टेम का राइजोम वाला पोर्शन यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ट्यूबर एंड बल्ब. आप सभी ने अनियन देखा है, और ये अनियन बल्ब जो रहता है हम इससे भी प्रोपेगेट कर सकते हैं. अनियन का पूरा प्लांट हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनियन बल्ब. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन यूज़ पोटैटो, दैट कैन बी यूज एज ट्यूबर, और हम इससे भी नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं. अब जैसे ह्यूमन आर्टिफिशियली हर चीज़ क्रिएट करता है, तो ह्यूमन इवन ग्राफ्टिंग, कटिंग. अब देखते हैं, जैसे हम किसी पड़ोसी के घर हमारे एक अच्छा गुलाब का फूल देखते हैं, गुलाब पेड़ देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनसे वो स्टेम ले आते हैं और वो हम हमारे घर में प्रोपेगेट करते हैं. राइट, दैट इज़ कटिंग. और हम उसको स्टेम को लगा देते हैं हमारे घर पे, जिससे पूरा हमें वैसा ही सेम प्लांट हमें हमारे घर में मिल जाता है. द सेकेंड प्रोसेस इज ग्राफ्टिंग. अब हमें देखना है कि ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं हम. ग्राफ्टिंग कैन बी डन बाय टू टाइप्स. दैट इज, वन कैन बी द स्टेम ग्राफ्टिंग एंड अनदर इज बर्ड ग्राफ्टिंग. स्टेम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं आप, सपोज आपको ऐसे दो प्लांट्स हैं जिनके दोनों के ट्रेट्स आपको मिक्स करना है. तो सपोज करते हैं हम, हमारा एक प्लांट है जिसके फ्लावर्स काफ़ी सुंदर आते हैं, और हमारा एक प्लांट है जिसमें फ्लावर का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जिसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उसका नंबर कम है, और यहाँ पे जिसके फ्लावर्स माइट भी इतने ब्यूटीफुल नहीं है लेकिन इसके नंबर ज़्यादा हैं. तो ये दो ट्रेड्स अगर आप मिक्स करना चाहते हैं या इसका एक हाइब्रिड प्लांट बनाना चाहते हैं, तो दैट यू कैन मेक बाय ग्राफ्टिंग प्रोसेस. आप क्या करेंगे, इस प्लांट का पर्टिकुलर, इस प्लांट का आप स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम रहने देंगे, दैट वुड बी योर स्टॉक. और आप दूसरे प्लांट का, मीन्स दिस इज प्लांट बी, इस प्लांट का आप अनदर स्टेम इसमें ज्वाइन कर देंगे, दैट वुड बी सायन. ये दोनों प्लांट के कॉम्बिनेशन से आपको जो प्लांट मिलेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज अ ग्राफ्टेड प्लांट.
Now, this can be similarly, this can be done with the help of bud. Plant है, plant का एक bud है. Suppose this plant is A, and another plant that is plant B. Now, what you will be doing in the next procedure, आप ये A और B plant को अगर mix करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये bud को incise कर लेंगे, कट कर लेंगे, और आप ये बर्ड को इस प्लांट में इस तरीके से इस बर्ड को लगा लेंगे, और ये हो गया आपका बर्ड ग्राफ्टिंग. ये सारे मेथड हो गए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय टिश्यू कल्चर. नाउ व्हाट इज टिश्यू कल्चर? जब हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये याद रखना है कि टिश्यू कल्चर में सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि जनरली मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास होती है, दैट इज टोटिपोटेंसी. अब टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं और उसमें फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स या फिर बहुत टाइनी पोर्शन हम निकालते हैं और उसे इनोक्यूलेट करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम में, और उससे हमें पूरा न्यू प्लांट मिलता है. दैट इज डन इन टिश्यू कल्चर. अब वो कैसे होता है, तो दैट इज ड्यू टू वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज टोटिपोटेंसी. नाउ व्हाट इज टोटिपोटेंसी? इट इज द एबिलिटी of a cell to divide or differentiate into complete new organism. Now, after this all asexual modes of reproduction, we will turn towards the sexual reproduction in plants. Now, before starting with sexual reproduction, we know in sexual reproduction what will happen? The male and the female gametes will fuse together. Now, before starting that, I just want to revise the floral diagram through which we can understand the male reproductive part, that is androecium, and the female reproductive part, that is gynoecium. अगर आप सभी ने पढ़ा है तो आपको ये डायग्राम याद आ रहा होगा जिसमें हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव वॉल्स को पढ़ेंगे. Now, looking at this diagram, what you can get here is the female reproductive part, that is this portion, that is ovary, stigma and style. These three parts constitute to female reproductive part, that is known as pistil or gynoecium. Apart from that, when you will look at this blue diagram, that is of anther. This is anther, this is bilobed anther, this is filament,
and together this particular diagram is called as stamen, that is male reproductive part. ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और इन दोनों को मिला के हम स्टेमिन कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोशियम. This particular figure of stigma style ovary, that is SOS, this is pistil or gynoecium. Now these are corolla, petals, these are sepals, and this is thalamus. अब जब हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हमें पता है व्हाट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, राइट. सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एकदम से नहीं होता है. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए प्रायर कुछ स्टेजेस होती है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ स्टेजेस होती है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द 3 stages, and that 3 stages are the events that occur pre-fertilization, that is pre-fertilization events, then there would be the second step, that is of fertilization, and then there would be events called as post-fertilization events. अब जब हम खाना खाते हैं तो हमको खाना खाने के पहले खाना बनाना पड़ता है, राइट. हमको हमारा आटा गूंथ के रखना पड़ता है, चावल धोना पड़ता है, राइट. इन अ सिमिलर मैनर कुछ चीज़ें होती है जो कि प्री फर्टिलाइजेशन में होते हैं, इसको कहते हैं हम तैयारी. अब प्लांट तैयारी कैसे करता है, तो हियर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वुड बी देयर. सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर को करना है. सेकेंड स्टेप, अब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन तो गए, पर इन्हें ट्रांसफ़र कराने का काम, इन्हें मिलाने का काम, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप इन द प्री फर्टिलाइजेशन. अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई, हमारा रॉ मटेरियल रेडी हो गया. अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? वेयर मेल गैमेट, फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड दे गिव राइज टू द zygote. Here fusion of female and male gametes occur and it give rise to zygote. Then zygote further, अब zygote बनने के बाद जैसे हमने खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट होगा, that would be the post step period. In a similar manner post fertilization में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद, zygote फॉर्मेशन के बाद, देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फ्लावर, फ्रूट अहेड. Now these are the steps in which the sexual reproduction occurs. Now when we will look forward how the sexual reproduction occurs, we need to see where this male reproductive part or male reproductive organ, male gametophyte develops. Now we will look at the structure of anther, जहाँ पे हमारे male gametophyte develop होंगे. Now at very primary stage, अब हमारा structure of anther develop हो रहा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर प्राइमरी स्टेज पे जब वो इमैच्योर रहता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं दे आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स. यहाँ पे हमारा एंथर इमैच्योर स्टेट में प्रेजेंट है. नाउ अब हमारे सेल जब डेवलप होगा, जब इमैच्योर एंथर बनेगा,
इमेच्योर एंथर से जब हमारा एंथर मैच्योर बनेगा तो देयर वुड बी सर्टेन चेंजेस दैट विल अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. नाउ टीएस ऑफ एंथर में आर्चीस्पोरियल सेल्स या हाइपोडर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड दे गिव राइज टू द टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर विथ सर्टेन लेयर्स ऑफ सेल. सबसे पहली सेल होती है हमारी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस मतलब द लेयर विच इज द आउटर मोस्ट लेयर. सो एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर. इसके बाद हमारी लेयर आती है एंडोथीशियम, then middle layers, and then tapetum. एंड उसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यूज रहते हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं. नाउ दिस particular diagram shows you how the structure of anther looks like. The outermost layer of the anther is called as epidermis. इस लेयर का काम होता है एंथर को प्रोटेक्ट करना. उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर. एंडोथीशियम और मिडिल लेयर की लेयर्स 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसे वेरी कर सकती है. उसके बाद आते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यूज. What are sporogenous tissues which further give rise to the microspore mother cell, जिससे आपके माइक्रोस्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट बनते हैं. Now the pyramidal cells which you look here are tapetum. tapetum का फंक्शन क्या होता है? तो ये पिरामिडल शेप की रहती है. Apart from that, the cells are multinucleated. और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे पोलन ग्रेन्स को, हमारे माइक्रोस्पोर सेल्स को नरिश करना. नाउ फर्दर व्हेन वी विल मूव, ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो कि काफ़ी टाइम पेपर में पूछा जाता है फॉर 3 to 4 मार्क्स. इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. देन आपको लेयर वाइज लाइक एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है. इसके जो सेल्स रहेंगे ये फ्लैटेंड सेल्स है. अगर आप इन्हें देख पा रहे हैं तो दे आर फ्लैटेंड सेल्स. दे आर जनरली सिंगल लेयर्ड. Apart from that, when we will come to the endothecium is further divided into the middle layer and the inner layers. So these layers are 2 to 3 layers. Again, they even do the outer covering of the sporogenous tissues. Then there is a tapetum. tapetum क्या करता है? तो tapetum का सबसे important function है कि ये nucleated cells हैं, right? देन ये पिरामिडल शेप के हैं. उसके अलावा ये इनर मोस्ट लेयर है जो कि अब प्रोटेक्ट करेगी हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को. फर्दर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसे पोलन फॉर्मेट कर मेल गैमेटोफाइट या फिर पोलन को फॉर्म करते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं. तो सबसे पहले जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है. अब हमने ये देखा कि पोलन का स्ट्रक्चर कैसा है, बट ये पोलन बना कैसे है, राइट? तो सबसे पहले हमारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट गॉट meiotically divide that undergone to the mitotic division and it formed the tetrad, microspore tetrad. अब ये जो microspore tetrad आपका बना है that act as what? It act as a microspore mother cell, right? और ये microspore mother cell, sorry, this is the microspore mother cell and that forms the microsporangiate tetrad.
और ये आपके माइक्रोस्पोर्स बन गए। ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स बने हैं दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, राइट। अब ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये माइक्रोस्पोर्स मीन्स पोलन ग्रेन्स फर्दर कुछ डिवीजन शो करते हैं। अब जब आपका माइक्रोस्पोर बना है तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ पे देयर आर लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोर दैट पोलन ग्रेन इज एक्साइन, इंटाइन एंड देयर आर जर्म पोर्स इन बिटवीन। ये जो आपको ऐसे पोर लाइक पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज जर्म पोर। नाउ इट डज हैव द न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है ये दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। वन इज वेजिटेटिव सेल, अनदर इज रिप्रोडक्टिव सेल। नाउ आपकी जो एक्साइन है बेटा, आपके पोलन ग्रेन्स की जो आउटर कवरिंग है एक्साइन, ये तो जो है वो बहुत टफ सब्सटेंस की बनी हुई रहती है, जिसे आप बोलते हैं स्पोरोपोलैनन। स्पोरोपोलैनन एक ऐसा सब्सटेंस और इतना हार्ड सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज़ से डिजनरेट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। देन देयर इज इंटाइन। अब बच्चों एक्साइन जो है ये बहुत टफ सब्सटेंस है, स्पोरोपोलेनिन का बना है क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है पोलन ग्रेन को, राइट। अब इंटाइन किसका बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। अब आपका जो जर्म पोर है ये प्रेजेंट रहता है टू इंटरचेंज द मटेरियल इफ रिक्वायर्ड। रिप्रोडक्टिव सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। अब फर्दर जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है, हम मेल गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं पोलन को, वाई, बिकॉज मेल गैमेटोफाइट एक ऐसा पार्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट और मेल गैमेट को कैरी करता है, राइट। तो अब आप अगर ये वाला डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जर्म पोर प्रेजेंट है। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा ये जो पोलन ग्रेन है इसका आउटर मोस्ट सरफेस स्मूथ भी हो सकता है, राइट, स्मूथ हो सकता है और स्कल्पचर्ड रह सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ सरफेस? स्मूथ सरफेसेस, आपका सरफेस पूरा प्लेन रहेगा, और अगर आपका स्कल्पटेड सरफेस है तो वो कुछ आउटर कवरिंग इस तरीके से लगेगी। फाइन, नाउ वी विल सी हाउ दिस जनरेटिव सेल divides mitotically itself and forms two male gametes. Now पोलन ग्रेन हमारा बनके रेडी है। हमारे पोलन ग्रेन ने डिवाइड करके वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना लिया। दिस जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड्स। माइटोटिकली डिवाइड मतलब क्या होता है, जहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन है, राइट। जैसे हमारा जनरेटिव सेल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, अब इसने माइटोटिकली डिवाइड किया अपने आप को और दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लिए, दो मेल गैमेट्स बना लिए। अब ये वाली जो प्रोसेस है कि जहाँ पे हमारा जनरेटिव सेल मतलब ये वाला सेल is dividing into the two equal halves mitotically, दो सेल्स में अगर ये डिवाइड हो रहा है, ये आपके जो दो मेल गैमेट्स बने हैं ये किस स्टेज में बनते हैं, तो ये हमारा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है जब हमारा माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन मैच्योर हो गया है। अदरवाइज हमारे पोलन ट्यूब का जब डेवलपमेंट होता है आफ्टर द पॉलिनेशन, तब भी ये वाली सीक्वेंस, ये वाला स्टेप हो सकता है। नाउ further we will see the development of the female gametophyte, how female gametophyte develops, how the egg cells develop, that we will see in the further lecture. Thank you.